Let's start. So, social impacts, subject informatic practices. तो पता ही सबको. Now let's start. Till now we have completed all the part of all the units in your according to your new syllabus. Okay. Now we are going to start social impacts. Okay. So सबसे पहले we'll discuss about digital prints. What is digital print? Okay, digital prints, you can say it's a footprints or records traces individually leave behind us as they use the internet. Like हम लोग जैसे इंटरनेट पे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, at that time will lot of things we will do. When you are log in, आपके पीछे बैक साइड में हिस्ट्री छूट जाती है. ठीक है, you will यूज हिस्ट्री. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू विल सपोज दैट यू विल सर्च एनीथिंग ऑन गूगल. ओके, एट दैट टाइम यू विल गेट इंफॉर्मेशन. गूगल will save your information accordingly. He will send you the links and all that you are searching this. Okay, same as suppose that your Facebook ID and Amazon ID are linked with each other. Okay, then whatever you will search on Amazon, that will comes on your Facebook. So that is completely linked up. Okay, so whatever you will do on online, okay, that will work with your digital print. ठीक है, वो हमारा हम उसको कह सकते हैं that is our digital print. Okay, so like here digital prints is the trial of information that people leave online or using other communication devices. ठीक है, like favorite apps, website visited, messages sent, videos downloaded, pictures uploaded, music download, games played, comments posted. ये सारे के सारे digital print. What will your digital footprint look like? ठीक है, अब ये एक print एक simple image है, that's not actual life. Okay, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और जैसे आप YouTube करते हो, ठीक है, YouTube पे आप जो भी सर्च करोगे वो आपकी हिस्ट्री में चला जाता है. अकॉर्डिंगली आपको वो लिंक्स उसी अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जब आप ओपन करोगे, व्हेन यू विल ओपन अगेन YouTube और एनी फेसबुक और एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ एड्स, एनी टाइप ऑफ, लाइक अभी नई चीज़ चली है रील. ओके, तो रील्स में क्या होता है कि वट एवर द टाइप्स ऑफ वीडियो यू विल सी that those type of video will come on the next search when you will open up your Facebook ID or else. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो नाउ कुछ चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट इज डिजिटल प्रिंट्स आर आल्सो रिफर्ड एज डिजिटल टैटूज. इनको हम टैटूज भी बोलते हैं. योर इंटरेक्शंस ऑन सोशल मीडिया, जो भी आप इंटरेक्शन करते हो ऑन सोशल मीडिया, दैट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, योर फ्रेंड सर्किल on social media, sites or you visit, online purchase, location visited through Facebook, check-ins जो आप होंगे देखते होंगे, आप रिकॉर्ड चेक-इन्स होते हैं. आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, आफ्टर 1 year 2 year 3 year, बहुत सारे सालों तक आपका फेसबुक रिकॉर्ड रखता है. फिर आपको लास्ट टाइम जब आपका वो सेम, जैसे बोलते हैं आपने एक फ़ोटो एक्स अपलोड करी थी ऑन 2020 में. ठीक है, 2020 में आपने एक फ़ोटो अपलोड करी. सॉरी 2020 तो हो ही नहीं सकता ना, 2010-20 को आपने एक फ़ोटो अपलोड करी थी. ठीक है, तो ऑन दैट डे आफ्टर दिस, सपोज अब अक्टूबर आ रहा है, जैसे सेम डे आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा 21 में कि योर मेमोरीज, यू आर माई, वी डोंट वांट टू लूज योर मेमोरीज. ठीक है, ऐसे करके एक नोटिफिकेशन आता है एंड यू विल द पॉपअप विल कम ऑन योर फेसबुक and then you can see that there is some, ठीक है, information and you can share it again. ठीक है, so digital footprints last forever. ठीक है, colleges, jobs will look back at them to see if you are what you portray and how you conduct yourself actually. अब ऐसा भी होता है, अब तो जब when MNCs जो होती हैं, they will provide you a job, आपके एट दैट टाइम आपके फेसबुक IDs वगैरह सब कुछ चेक हो जाते हैं कि ये इसका प्रोफाइल है.
ठीक है, अब प्रोफाइल्स भी बनने लगे हैं, प्रॉपर प्रोफाइल्स बनने लगे हैं, मॉडरेटेड प्रोफाइल्स हैं, दे upload all the things and then you can see these things, this courses, these type of training, this type of projects you have completed now. ठीक है, तो in the time this type of things, this type of procedures you will leave behind when you will search on internet. Okay, so that is impact of social impacts, or you can say this is a drawback also, that everyone you are watched at that time of even you are surfing online and using internet. Okay, so don't think so that you are safe, you are whatever you are doing on internet, that is accessible. आप history read करने के बाद भी you are accessible what you have searched. Okay, that history whatever you delete, that is your part, that is that history will delete from your section, not from your internet, from your mobile only, not from the internet. Now see, net etiquettes की बात करते हैं, मतलब net and communication etiquettes की बात करते हैं, तो तब हम थोड़ा सा आपको अच्छी बातें बताएंगे अभी, ठीक है। अब if you will talk about net etiquettes, net etiquettes is a set of rules for behaving properly online. ठीक है, ऑनलाइन हमें कैसे व्यवहार करना है किसी से, how to correlate the things, how to do messages, how to request friend request, how to send the friend request, how, why, to whom you are going to send the request. Okay, what is the rules in the internet media, that is important. Okay, so let's see, this is a figure, basic rules की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बी यूनिवर्सल, ठीक है, बी यूनिवर्सल means you will search anything on the internet, ठीक है, anything you will search on internet, ठीक है, you can explore all the things, ठीक है। Remember that the written word is hard to interrupt, ठीक है। अब if you write something, suppose that आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, मैसेज किया, ठीक है, then when you will message, then what words, what terms you are using at the time of messaging, that is important. Don't break any laws, ठीक है, कोई भी लॉ हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेक अ गुड इम्प्रेशन, हमें किसी पे जो whatever the wrong sites, fake sites, quality sites हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेक अ गुड इम्प्रेशन, always identify yourself, ठीक है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, that is wrong, that is good, that is bad, like this, ठीक है। बी पेशेंस, नो कमर्स, ठीक है। डू नॉट टाइप ऑल इन कैपिटल लेटर्स फॉर एम्फेसिस, ठीक है, फोकस पाने के लिए आप फुल कैपिटल लेटर्स में टाइप ना करें। बी ब्रीफ व्हेन एवर पॉसिबल, ठीक है, बहुत शॉर्ट में हमें बात करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में समय बहुत कम होता है। डू unto others as you have other do unto you, ठीक है, एक दूसरे को बुलिंग नहीं करनी चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू यूज रूड और बैड लैंग्वेज ऑनलाइन, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हु इज इन द लॉबी, now see, अब सबसे पहले बात करते हैं रिमेंबर ह्यूमंस, ठीक है। रिमेंबर रूल नंबर 1, रिमेंबर ह्यूमन मीन्स यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर टॉकिंग टू रियल पर्सन व्हेन यू आर ऑनलाइन। ये आपको पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन से बात कर रहे हो, ठीक है। आस्क योरसेल्फ व्हेन सेंडिंग ऑन एन और पोस्टिंग, वुड आई से दिस टू द पर्सन's फेस? If not, do not send or post it or chat about it. Always ask permission before posting anything about someone on the web.
अब देखो समटाइम्स वी व्हाट विल डू, हम लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल फ़ोटो पे किसी की भी फ़ोटो लगी है, ठीक है, हनुमान जी की लगी है, या किसी भगवान की लगी है, किसी की भी बहुत सारी चीज़ों, किसी हीरोइन की लगी हो सकती है, किसी हीरो की लगी हो सकती है। डोंट सेंड द फ्रेंड रिक्वेस्ट लाइक दोज पीपल्स। अगर सपोज है किसी का नाम अक्षय कुमार है बट वो उसने क्या किया, अक्षय कुमार की फ़ोटो लगा ली, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ गुड, ही इज़ अ रियल ह्यूमन और ही इज़ फेक, द आईडी इज़ फेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जज द पर्सन हु इज़, और you can ask that person from whom you are chatting or whom you are sending the request and all, that can I send the friend request, or you can contact, suppose that आपके एक फ्रेंड का नाम है XYZ, तो XYZ ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, हो सकता है उसकी फेक आईडी हो, ठीक है, you can ask him or her that have you sent me the friend request, yes, if you say yes then you can accept like this, ठीक है। तो एक प्रोसीजर होगा, आप कभी अनवांटेड पर्सन्स के बीच में नहीं फंसेंगे, अनवांटेड कमेंट्स के बीच में नहीं फंसेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, बुलिंग से बचेंगे आप, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सेफर साइड चल सकते हैं, ठीक है। adhere to the same standards online that you follow in real life, ठीक है, you need to behave the same way online that you do in the real life। जैसे हम लोग रियल लाइफ में बिहेव करते हैं प्रॉपरली, we can talk with the elder ones, younger ones, like that only we can do here। you need to remember that you can get caught doing this, you should not be doing online, ठीक है। अगर आप जैसे ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर जैसे आप यहाँ पे पकड़े जाते हो ना गलतियाँ करते समय, तो यू कैन गेट देयर ऑल्सो, कि you can got over there also, कि हाँ something you will in any manner you can judge yourself at that time, just like you can real life, you are still taking to real person with feelings even though you can't see them, ठीक है। आप उसको जैसे हम right now I am talking with you, ठीक है, just this is a way of talking, we are meeting online and I am using internet, you are listening me, okay। if I will use any foul language, then at that time you will feel not good, so because I don't know that in what mood you are sitting in the class with by the pressure of with the parents or any other thing, ठीक है। so you have to be careful when you are talking online, same when you are talking in front of you, suppose that I will taking class in live class, okay, and here that is online class, the environment is completely different, nowhere you are in cyberspace, ठीक है। always took a look around when you enter a new domain when surfing the web, get sense what the discussion group and about before you join it, be the better person, if someone is being rude in cyberspace do not make it worse, ठीक है। अगर आप किसी भी कोई पर्सन या आप रूड हो रहे हो या कोई रूड हो रहा है, then don't entertain that person, just close the talk or remove the chat or stop the chatting with that or her or his person, ठीक है, him her or him, then leave it that chat bot। now respect other people's time bandwidth, ठीक है, हमें तो एक दूसरे की बैंडविड्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे nowadays every person will get 1.5, many of that is different thing, if you have a Wi-Fi and all, 1.5 GB data everyone will get, okay। so in that case you have to remember that also, कि हमें पता नहीं होता है कि in the second person के पास how much data he have, so like money, data is like a money nowadays, so you have to be careful that the bandwidth of the person will be, you are not center their word, keep your post and minimums to by saying that want to say, ठीक है। जैसे आपको जितना कहना है बस उतना ही आप उनसे कहिए,
ठीक है, लिमिटेशंस में चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। यूज़ द सब्जेक्ट लाइन सो द रेसिपिएंट नोज व्हाट द इज़ अबाउट। ठीक है, इस सब्जेक्ट लाइन हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन हमें यूज़ करनी चाहिए। देन वी कैन इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्स और एक्शन पुट इट इन सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इफ़ यू वांट अ रिस्पॉन्स और एक्शन पुट इट इन द सब्जेक्ट लाइन, हमें उस सब्जेक्ट लाइन में लिख देना चाहिए। बाय सब्जेक्ट ओनली ही और शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। डबल चेक द लिस्ट ऑफ पीपल टू हुम यू आर फॉरवर्डिंग द मैसेज। हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि टू हुम यू आर फॉरवर्डिंग द मैसेज। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सर आई डोंट वांट टू सेंड यू, एक्चुअली आई एम गोइंग टू सेंड दिस मैसेज टू द फ्रेंड बाय मिस्टेक, सो सॉरी सर। ऐसे मैसेज हमारे पास दिन में 4-5 आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि टू whom you are sending, to whom, in which group you are going to send the message. You have to be careful regarding this. Okay, make yourself look good online. Remember, always check your spellings and grammar before posting. हमें spellings और grammar का बहुत ध्यान रखना चाहिए। Always know what you are talking about and make sense saying it. बी पोलाइट एंड प्लीजेंट टू एवरीवन। हमें बहुत पोलाइट होना चाहिए और हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू सेंड, व्हाट यू आर गोइंग टू मैसेज टू एनीवन। ओके, दिस चैप्टर इज एक्चुअली मैक्सिमम theoretical part. Okay, now next rule number 6, share expert knowledge. ठीक है, एक्सपर्ट नॉलेज हमें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, शेयर व्हाट यू नो ऑनलाइन। ठीक है, पोस्ट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस ऑनलाइन बिकॉज समवन मे हैव द सेम क्वेश्चंस यू टू। ठीक है, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम व्हाट यू आर गोइंग टू सेंड मैसेज, इफ एनीवन आस्किंग समथिंग यू हैव टू रिप्लाई प्रॉपर्ली। ठीक है, रूल नंबर 7, हेल्प कीप फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल। ठीक है, हमें आग लगानी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब हमें कुछ भी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस नहीं देने चाहिए, इमोशंस नहीं देने चाहिए जिनसे किसी को हर्ट होता है। ठीक है, ओपिनियन विदाउट होल्डिंग बैक एंड इमोशंस। ठीक है, नेट एटिकेट डज नॉट फॉरबिड फ्लेमिंग। ठीक है, नेट एटिकेट डज हाउएवर फॉरबिड पीपल हु आर फ्लेमिंग द हर्ट डिस्कशन ग्रुप्स एंड पुटिंग द ग्रुप डाउन। ठीक है, तो हमें हमेशा उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स प्राइवेसी, हमें उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट रीड अदर पीपल्स मेल विदाउट परमिशन। गोइंग थ्रू अदर पीपल्स थिंग्स कुड कॉस्ट you your job और you could even go to the jail। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जेल भी जा सकते हैं। नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स पीपल प्राइवेसी, बैड नेट एटिकेट्स। डोंट अब्यूज योर पावर। ठीक है, डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर पीपल जस्ट बिकॉज यू हैव मोर नॉलेज और पावर देन देम। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, यू कैन पावर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज। ओके, देन डोंट यूज दैट पावर ओवर देयर। If you have extra knowledge, more knowledge, treat others as you would want to them to treat you if the roles were reversed. For example, system admins should never read private। ठीक है, जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं वो कभी भी किसी का प्राइवेट मैसेज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर यू कैन से इफ एनीवन इज ट्रस्ट ऑन यू एंड देन ही कैन गिव यू द फोन लाइक जैसे पापा मम्मी या कोई भी ऐसा, बेटा ये देखो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एट दैट टाइम उस प्रॉब्लम को सही करते समय यू शुड नॉट रीड द मैसेज एंड पर्सनल मैसेज विद टू इन हिज आवर मोबाइल। ओके, तो ये भी हमारा एक नेट एटिकेट्स के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बी फॉरगिविंग ऑफ अदर्स पीपल्स मिस्टेक। डू नॉट पॉइंट आउट मिस्टेक्स टू पीपल ऑनलाइन। Remember that you were once the new kid on the block। ठीक है, you still need to have good manners even though you are online, cannot see the person face to face। ठीक है, आप ऑनलाइन हो तो that means you will you are a kid on the net। if you are new on the any of the social media or any of the internet,
that time you are a kid, on that time at the time you are a kid, if you are accessing the new thing. Okay, now ईमेल मैसेज करने के हमारे पास नेट एटिकेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे चेक योर मेल्स डेली, ठीक है, हमें अपने मेल्स डेली चेक करना चाहिए, ठीक है। डिलीट अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड मैसेज को डिलीट कर देना चाहिए। कीप मैसेजेस इन योर इनबॉक्स टू मिनिमम, मेल मैसेजेस कैन बी डाउनलोडेड एंड सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। नेवर एज्यूम दैट योर कैन बी रीड बाय नो वन बट योरसेल्फ, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि आपके अलावा उसको कोई और नहीं पढ़ रहा है। रिमेंबर देयर आर ऑलवेज पीपल लर्किंग अराउंड ऑनलाइन, ठीक है। ऐसा कहीं भी इधर उधर भटकते रहते हैं, आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो डोंट इफ़ यू आर ऑनलाइन देन यू आर नॉट सेफ, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन क्या होती है? पर्सनल डेटा, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू यू वेदर it relates to your private, professional or public life in the online environment where vast amount of personal data are shared and transferred around the globe instantaneously. It is increasingly difficult for people to maintain control of their personal information. There is where data protection comes in. Okay, so data protection refers to the practices, safeguards and binding rules put it place to protect your personal information and ensure that you remain in control of it, ठीक है। हमें हमेशा जो भी हम प्रोटेक्शंस लगाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए and we will careful about it. In short, you should be able to decide whether or not want to share some information, who has access to it, for how long, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम किसी को एक्सेस दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, या फिर यू कैन से यू आर एक्सेस एनीवन कैन एक्सेसिंग समथिंग, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ मच टाइम यू विल गिव टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा टू दैट पर्सन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और एक्सेस भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए जितनी थर्ड सेकेंड पर्सन को रिक्वायरमेंट हो। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी को नहीं देनी चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर हैविंग डेटा इन दैट प्लेस। व्हाट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। सम डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर डिस्क is personal and needs to be kept confidential, such as pay, bank details and medical records. If someone who is not entitled to see these details can obtain access without permission, ठीक है। सपोज दैट आपके पास कोई भी थर्ड पर्सन आपके पास आपका डेटा है, ठीक है, लाइक बैंक डिटेल्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, समथिंग kept confidential. These things, if anyone can access without your permission, then that is called unauthorized access. If anyone access it, then you can claim on him, okay, and he can go to jail for 2 years also if it is that much important. Then now see next 8 प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। हमें 8 प्रिंसिपल पे डेटा प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। 8 प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन मीन्स डेटा मस्ट बी केप्ट सिक्योर, हमें डेटा अपना हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। डेटा स्टोर्ड मस्ट बी रिलेवेंट होना चाहिए। डेटा स्टोर्ड मस्ट नो लॉन्गर देन नेसेसरी, हमें उतना ही टाइम के लिए डेटा स्टोर करना चाहिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो। आफ्टर दैट इफ यू थिंक दैट डेटा विल नॉट रिक्वायर्ड देन यू कैन डिलीट। डेटा स्टोर्ड मस्ट बी केप्ट एक्यूरेट एंड अप टू डेट, ठीक है, हमें एक्यूरेट और अप टू डेट रखना पड़ता है। डेटा मस्ट बी ऑब्टेन प्रोसेस्ड लॉफुली, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा रखना चाहिए, मतलब नियम के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग। डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड विद इन डेटा सब्जेक्ट राइट्स, ठीक है, हमें जिस तरह के सब्जेक्ट राइट्स दिए जाएँ अकॉर्डिंगली हमें डेटा एक्सेस करना चाहिए। डेटा मस्ट बी ऑब्टेन एंड स्पेसिफाइड फॉर लॉफुल पर्पस, ठीक है, अगर कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो हमें एथिक्स के अकॉर्डिंग ही डेटा को एक्सेस करना चाहिए। डेटा मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड टू कंट्रीज विदाउट एडिक्वेट
डेटा प्रोटेक्शन लॉज, अगर हमें किसी कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा ट्रांसफ़र करना है, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपरली, देन ओनली यू कैन ट्रांसफर. Now see next, practices to ensure confidentiality of information. Use firewall wherever possible, जहाँ भी पॉसिबल हो हमें फायरवॉल यूज़ करनी चाहिए. मीन्स वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, अनऑथराइज पर्सनस के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन हैकर्स के लिए, ठीक है, हमें फायरवॉल बहुत मजबूत रखनी चाहिए. कंट्रोल ब्राउजिंग सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग, ब्राउजिंग सेटिंग्स को ट्रैक कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है. ब्राउज प्राइवेटली वेर एवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल हो आपको प्राइवेट ब्राउजिंग करनी चाहिए, ठीक है. बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट. इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंट systems like not personal system, then you can use private browsing. Okay, be careful while posting on internet. जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो, you have to be careful. Ensure safe sites while entering crucial information. अगर कुछ crucial information है तो आपको safe site रहना पड़ेगा, ठीक है. crucial information. Ensure that address contain HTTP and padlock sign, ठीक है. अगर एक आपको चीज़ बता, जैसे हम लोग लिखा हुआ है HTTP लिखा होता है और इस पर क्रॉस लगा होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स द साइट इज़ नॉट सिक्योर. और एक लिखा होता है HTTPS, ठीक है, तो दैट मीन्स द साइट इज़ सिक्योर. तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, करना चाहिए. रेड लाइन से HTTP लिखा होगा, उसके ऊपर ब्लैक HTTP लिखा होगा, देन रेड लाइन विल बी देयर, देन दैट साइट इज नॉट सिक्योर. डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक है. वायरलेस नेटवर्क पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ठीक है. नेवर सेव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल, ठीक है. इफ इट इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियल, देन नेवर सेव पासवर्ड्स व्हाइल वर्किंग ऑन द पब्लिक कंप्यूटर. अगर हम पब्लिक कंप्यूटर पे पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक साइबर कैफे एंड ऑल, देन डोंट सेव योर पासवर्ड्स. अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन टू अ पब्लिक कंप्यूटर, ठीक है. हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंकिंग एंड ऑल पब्लिक कंप्यूटर्स पे यूज़ नहीं करना चाहिए. डिसेबल द फीचर्स दैट स्टोर्स पासवर्ड. आप पासवर्ड व्हेन एनीथिंग a pop-up will come that you do want to save the password and all, ठीक है, for this site, then don't use that password. Disable the feature that stores the password. Erase history and trace to your work. अपने जो भी हिस्ट्री है delete it, okay, and then clear all the cache memory and all, okay, on the computers on which you are sitting. Not personal I am talking about. I am talking about public computer or office computer or any computer which used by multiple persons. So don't just close the browser before closing the browser. Just clear the history, okay. Now next, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ठीक है. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इन पे बात करते हैं. व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मतलब whatever we have in computer, in virtual world, that is whatever the data you will save on the internet, on the working area, that is called a property, okay. The word property is generally used to mean possession, specifically something to which owner has legal rights. इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, it is called property. अब intellectual property क्या है? It refers the creation of intellect used in commerce, like invention, literacy and artistic work, symbols, names, images and designs. जैसे लोगो होता है, हर एक जगह का लोगो स्पेसिफाइड होता है, उसको वो कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी राइट्स होते हैं उन पे, ठीक है. तो these are the, that is called a intellectual property, okay. हाँ सी, अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग. जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब जैसे इन्वेंशंस हैं जो पेटेंट्स कराते हैं हम लोग, साइंटिस्ट के लिए हो गया. ट्रेडमार्क्स, ठीक है. इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जैसे जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के, वो. कमर्शियल नेम्स जैसे ऑडी, ठीक है, मर्सिडीज़, इनका नाम कोई नहीं ले सकता.
लोकेशन स्पेसिफिक ब्रांड्स की लोकेशन, ठीक है, जैसे एप्पल की लोकेशन कहीं पे अगर होगी तो कहीं कोई ले नहीं सकता, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे लिटरेरी वर्क्स, नॉवेल हो गया, पोएम्स हो गए, प्लेस हो गए, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क, इनके कॉपीराइट्स होते हैं। आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, ये अब क्या कहते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, ये सब नहीं ले सकते। जिस किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई, अब बुर्ज खलीफा जिसने बनाया होगा तो उसके कॉपीराइट उसके पास होंगे, इसको चाहिए भाई ले जाओ आके, ठीक है। तो परचेज ये या शी कैन परचेज, ठीक है। तो कॉपीराइट्स परचेज किए जाते हैं, विदाउट परचेजिंग नहीं होता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रेडमार्क्स मतलब लोगो वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। और कॉपीराइट्स जो हमारे जितने भी रिटन मटेरियल्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो सब कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह, बुक्स जैसी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपीराइट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनेक्टेड बाय मोस्ट गवर्नमेंट्स गिविंग क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट्स टू इट, यूजुअली फॉर लिमिटेड पीरियड। कॉपीराइट लॉज प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो कॉपीराइट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वेबसाइट बनती है अगर किसी कंपनी की, तो वहाँ पे भी कॉपीराइट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेगरिज्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि हमें किसी का डेटा, जैसे हमने एक किताब लिखी तो उसमें हमने 10 जगह से डेटा उठाया और एक अपनी किताब बना दी, तो इन दैट केस प्लेगरिज्म उसको कहते हैं। प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क, representing it as your own work without citing a source of information। हमने कुछ भी source of information कहीं से भी निकाला, थोड़ा सब जगह से लिया, and we have created something, one new thing, तो that is called ये हमारा plagiarism के अंडर आता है, ठीक है। कॉपिंग, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कॉपिंग someone's work and then passing it off as one's own। एक्ट स्टीलिंग, ठीक है, चुराना। कॉपिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट गिविंग द ऑथर क्रेडिट, ठीक है, हमने किसी से किताब लिखवा ली और उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। कॉपिंग प्रोग्राम्स रिटन बाय अदर प्रोग्रामर्स एंड क्लेमिंग देम एज योर ओन, ठीक है। इन्वॉल्व्स लाइंग, चीटिंग, थेफ्ट एंड डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, झूठ बोलना, चीटिंग करना, उसका डेटा चुरा लेना, these are what comes under प्लेगरिज्म। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक होता है एक्सीडेंटल अनइंटेंशनल और एक होता है डेलिबरेट अनइंटेंशनल, ठीक है। दोनों तरीके से होता है। जैसे हमने कहा कि हमने एक क्वेश्चन दिया और आपने एक अच्छा सा आंसर गूगल से छाप के लिख दिया, तो दैट इज़ अ प्लेगरिज्म, ठीक है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, ठीक है। एक्सीडेंटल कैसे हुआ, जैसे हमने क्या किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीव दे दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ दुनिया में सब जगह एक ही होगा, वहाँ कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे प्लेगरिज्म एक्सीडेंटल होते हैं, ठीक है, और अनइंटेंशनली होते हैं। इन्वॉल्व्स केयरलेस परहैप्सिंग, चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और कॉपी डॉक्यूमेंट, क्वोटिंग टेक्स्ट एक्सेसिवली विथ पुअर डॉक्यूमेंटेशन, गंदा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऐसी चीज़ें एक्सीडेंटल हो जाती हैं। डेलिबरेट इंक्लूड्स कॉपिंग someone else's work, cutting and pasting blocks, text or any kind of media, audio, video, movie clips, etc. without documenting and at the same time publishing it on the web without permission, ठीक है। हम उसको without web publish कर देते हैं without any permission, ठीक है। Now how to avoid plagiarism? Plagiarism avoid करते हैं। Plagiarism is a bad practice and should be avoided by the following methods. Use your own words and ideas. अपने personal words, अपने खुद के words creativity यूज़ करना। Always provide reference or give credit to source from where you have received the information. अगर आप suppose that कहीं से कुछ copy भी कर रहे हो तो आपको उसको source, जिसे आप bibliography कहते हैं, आप उसमें उसका नाम डाल सकते हैं या website भी डाल सकते हैं। You must give credit whenever you use another person's idea, opinion or theory. Credit उनको you have to give credit that person, ठीक है। Quotation of another person's actually spoken
ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने बोला है समवन हैज स्पोकन व्हाटएवर द वर्ड्स है, पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन और रिटन, ठीक है, तो वो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। प्लेगियरिज्म इज ऑफेंस, इट वुड अमाउंट टू बोथ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट एंड वायलेशन ऑफ द सोशल स्पेशल राइट ऑफ द ऑथर टू बी क्रेडिटेड एंड दीज आर बोथ सिविल रॉन्ग्स एंड क्रिमिनल ऑफेंस। ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस भी हैं और सिविल रॉन्ग्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइसेंसिंग की। व्हाट इज लाइसेंसिंग? लाइसेंसिंग मीन्स सॉफ्टवेयर में हम लोग लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग इज अ लीगल राइट टू रन और प्रिविलेज गिव टू you by a company to access their applications or program or software. For example, when we purchase for proprietary software such as Windows OS, then we must have noticed that it comes with a license agreement, ठीक है। It is to be read first and to be agreed upon for the successful installation usage of software. हमें लाइसेंस, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं, we will get a license agreement. You have to accept that agreement. Now, license agreement typically allow the software to run on limited number of computers. Limited number of computers पे licensing system वर्क करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमारे पास यूज़ करते हैं। अब देखो in the graph, advantages of using licensing: be using licensed software, you are able to contribute to the further development of the program you are using. It comes with the outright support not found pirated software, ठीक है। हमें सपोर्ट अच्छा मिलता है, we will get the proper updates and all, ठीक है, उससे बेनिफिट मिलता है by using licensed software. Software licensing legally governed use by distribution, ठीक है। Proprietary software grants use about but ownership, ठीक है। आपको यूज़ करने का एक्सेस होता है बट ओनरशिप किसी और की होती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मैक, ठीक है, इस तरीके के, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ग्रांट्स यूज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको यूज़ करने का भी और डिस्ट्रीब्यूट करने का भी लाइसेंस होता है। कॉपी, अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं। वन इज कॉपीराइट लाइसेंसिंग, प्रिजर्व फ्रीडम एंड सब्सिक्वेंट यूजर्स गेट सेम राइट्स, ठीक है। तो हम कॉपीराइट लेते हैं और उसको फ्रीडम देते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, एंड देन रिजर्व परमिसिव लाइसेंस, फ्रीडम टू बी यूज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। हमें परमिसिव लाइसेंस, हम अपना उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद में वी कैन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पर्सन, नो इश्यूज, ठीक है। अब लाइसेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब जो लाइसेंसिंग होती है तो टू टाइप्स है, एक प्रोप्राइटरी लाइसेंसिंग एंड फ्री ओपन सोर्स लाइसेंसिंग। फ्री ओपन सोर्स लाइसेंसिंग क्या है? प्रोप्राइटरी लाइसेंस एक्सक्लूसिव राइट इन द सॉफ्टवेयर आर रिटेन्ड विद ओनर, डेवलपर एंड पब्लिशर, ठीक है। Violation of the proprietary software license amounts to copyright infringement. Restrictions are on like inspection, modification, source code, further distribution. Most commercial software are covered under proprietary license. जितने भी आपको owned like Mac हो गया, ठीक है, you can say Microsoft, ठीक है, Microsoft भी हमारा owned proprietary software है, ठीक है। तो in that case those software you will get, you can't change it, make changes, you will use, and then you can, if you have more than purchased more than one license, then you can distribute to other also, okay। now free and open source software की बात करते हैं, ठीक है। तो there is a free and open source software can be safely run, adapt and distribute, लाइक VLC जैसे मीडिया प्लेयर होता है, VLC मीडिया प्लेयर, KM प्लेयर आप यूज़ करते हो, ठीक है, फायरफॉक्स यूज़ करते हो, क्रोम यूज़ करते हो। दीज सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री सॉफ्टवेयर्स एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एम्फेसाइज ऑन फ्रीडम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अंडर फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस, फ्री एंड ओपन सोर्स परमिसिव लाइसेंस एंड कॉपीराइट लाइसेंस। अब देखो इसका मतलब बताते हैं आपको। फ्री लाइसेंस एंड कॉपीराइट लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। परमिसिव लाइसेंस जो होता है, जैसे इसमें आपको
यू कैन गेट परमिसिव लाइसेंस जो होता है प्रोवाइड और वैलिडिटी फ्री लाइसेंस, ठीक है। टू वर्चुअल एनीथिंग विद द सोर्स कोड, आपको सोर्स कोड के साथ मिलेगा। यू कैन यूज़, कॉपी, मॉडिफाई, मर्ज, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, सब लाइसेंसिंग एंड सेलेक्टिंग, ठीक है। जैसे अपाचे एंड W3C, ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप यूज़ करो और शेयर करो। जैसे आप SQL भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप MySQL वगैरह यूज़ करते हो, तो दीज आर द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अपाचे यूज़ करते हो, ठीक है, ये सारे के सारे आप सोर्स कोड के साथ आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट कॉपीराइट लाइसेंसिंग सोर्स कोड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। Distribution and modification of source code is permitted. Example like GPL, General Public License, Creative Commons License, LGPL, Leisure General Public License and MPL, Mozilla Public License. तो इस तरीके के जो लाइसेंसेस होते हैं वो आपको फ्रीवेयर मिलेंगे। यू कैन मेक चेंजेस इन इट एंड शेयर विद एनीवन। अब देखो GPL जनरल, नो लिमिट ऑफ कॉपिंग द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर, उसको कॉपी करने के लिए कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, यू कैन कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। लोकल वर्क रिस्ट्रिक्शन, एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वट एवर द फॉर्म ऑफ यू वांट। चार्ज अ फी, आप उस पर फी भी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, एक्रेडिशन, ऑथर मस्ट बी एक्नॉलेज, जो भी ऑथर है उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉपीड, यूज अदरवाइज। शेयर्ड विद CC, work can be modified and shared only under CC license, non-commercial, work cannot be used for commercial purpose, ठीक है। No derivative works, you can copy and distribute the licensed work but you can't modify it in any way, create a work based on the origin, ठीक है। तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट यू कांट मेक चेंजेस इन इट। नाउ Apache, ठीक है। राइट और नेवर एंडिंग, वंस द राइट्स हैव बीन ग्रांटेड देन यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉरएवर, नो नीड टू रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट यू you will get the updates and all. Authority of rights granted to any country, one country will be considered as granted of all countries. एक country को you can get access from anywhere. No free availability, no charges and are applicable in any form. किसी भी तरह के कोई charges applicable नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह यूज़ करते हैं। वेरी गुड। नाउ on next one we will study about free and open source software, FOSS you can say, okay। So that's all for today, okay।